जस्ट लुक एट हिम। मैं जहाँ पे भी बैठूंगी पढ़ने के लिए ये यहाँ पे आके सो जाएगा। ये इतना प्यारा लगता है ना। एंड सेक्शन नंबर 478 से जो 496 तक है दैट इज़ डीलिंग विद बेल एंड बेल बॉन्ड्स। अगर हम 125 से 129 तक बात करें तो दैट इज़ बेस, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जहाँ पे राइट्स और रेमेडीज़, बेल एंड अरेस्ट की बात हो रही है, ये ओबी जस्ट ईबी रेमेडियम पे बेस्ड है। फ़ोन का स्टोरेज खाली कर लेती हूँ फिर। Welcome back to my channel कानून सर्वोपरि and welcome back to yet another evening study vlog of my life. Even though मैं intro काफ़ी ज़्यादा बाद में ले रही हूँ but you are actually going to watch it in the starting of this vlog. So yeah, make sure to watch it till the end to actually stay disciplined and motivated to study yourself. So yeah, without any further ado, let's get started. खाली कर लेती हूँ फिर वहाँ पे मेमोरी फुल हो जाती है। क्या वीडियोस बनी हुई हैं जिनकी day 2 of this vlog and yeah, this is in continuation of that vlog. मैंने जो इंट्रो आपने स्टार्टिंग में देखा था वो मैंने अभी लिया था and I have just put it in the starting of this vlog during the editing. So yeah, I am short of words because अभी मेरे माइंड में सिर्फ यही चल रहा है कि मेरे को ये टॉपिक करना है, ये करना है, ये करना है, तो जल्दी से बस पढ़ने बैठते हैं. So yeah, without any further ado, let's begin. Okay, so for a quick reference, I'm gonna tell you what I have studied in BNSS till now. मतलब बेसिकली ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है पहले, पर अभी मैं स्टार्टिंग से दोबारा से पढ़ रही हूँ बिकॉज यू नो क्रिमिनल लॉ इज़ समथिंग जिसको आप एक बारी में नहीं पढ़ सकते हो एंड इट वुड टेक मी अराउंड मे बी 6 months इसको अच्छे से यू नो जुडिशरी लेवल के लिए पढ़ने के लिए. इट इज़ नॉट अ लॉ समथिंग विच यू कैन डू इन 1 month और 2 months और 3 months. आई थिंक अगर आपको अच्छे से करना है तो. सो लाइक आई विल जस्ट टेल यू द बेसिक्स जो मैंने अभी दोबारा से स्टार्ट करे हैं. Okay, starting from here. So basically, BNSS is a law that is replacing CRPC 1973. 1947 में मैं आज़ादी मिली थी. CRPC was more like आज़ादी के बाद आया था, but it was more focused upon punishment giving. Okay, so the BNSS is basically replacing CRPC. The IPC is replaced by BNS. And the Evidence Act is replaced by BSA. BNSS means Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. It is more focusing upon the people's protection. That is Nagrik Suraksha Sanhita. Okay, it is a procedural law unlike the Bharatiya Nyaya Sanhita that is a substantive law. And if we talk about BSA, that is Bharatiya Sakshya Adhiniyam, that is an adjective law. Adjective law means something which has both the features of substantive law and procedural law, but the features of procedural law are more than that of substantive law. So basically, if we talk about BNSS, it has total 531 sections and 39 chapters, unlike CRPC that had 484 sections and 37 chapters. It is Act number 46 of 2023 and section number 531 of BNSS officially repeals CRPC 1973. Its enactment date is 25 December 2023 and enforcement date is 1st of July 2024. And yeah, enforcement date might be different from official gazette notification date in some laws, but in this case the official gazette notification date was also 1st of July 2024. So yeah, basically
कोई भी अपराध होता है, ओके, अपराध दैट इज़ ऑफेंस इज़ बेसिकली एन एक्ट और एन ओमिशन दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओके, नाउ कोई भी मतलब किसी इंसान ने कोई एक्ट किया जो कि बीएनएस के अंदर अपराध है या फिर किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर अपराध है, दैट इज़ एन ऑफेंस। और अगर किसी इंसान ने कोई ओमिशन किया, मतलब कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसको करना उसकी लीगल ड्यूटी थी, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, ललिता कुमारी केस में ये गाइडलाइंस इशू करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन नंबर 173 BNSS अभी आया है, बट इट वाज सेम एज अगर हम CRPC की बात करें तो 154 CRPC, वहाँ पर FIR लॉज होती है। किसी ने भी अगर अपराध किया है तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि इन्फॉर्मेशन मिलने पर कॉग्निजेबल केस में उसे FIR दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, 173 BNSS में FIR और 174 में NCR अगर नहीं करती है पुलिस, तो दैट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 199 BNS, section 199 BNS and section 166A IPC that basically gives how the officers would be punished if they violate the basic law of 173 BNSS, that is to lodge an FIR or an NCR in case of cognizable and non-cognizable cases. नाउ कम्स बेसिकली द प्रोविजन ऑफ लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि आपका एक लीगल राइट वायलेट हुआ है एंड यू बेसिकली हैव अ राइट टू अपीयर इन द कोर्ट and you should follow the procedure to appear before the court. This is the basic doctrine of locus standi, and PIL also form a basic role in locus standi nowadays. Now if we talk about BNSS has two schedules mainly. First schedule is classification of offences and the second schedule is format, basically forms. There are total 58 forms. And classification of offences, under classification of offences there are 6 basically columns which we are going to study in detail. Okay, the first column I'll tell you in short. The first column is of section, the second of offence, तीसरा column punishment बताता है, fourth column cognizable non cognizable बताता है, fifth column bailable and non bailable offences बताता है, and sixth column बताता है कि by what court the case would be triable. For example, BNS में लिखा है section number for example we are talking about section number 64 in BNS. तो BNSS में जो basically first schedule है वो 6 columns में divided है, ठीक है. Schedules are basically the additional additives to the main law which provide certain information that the main law could not provide. ओके, मेन लॉ में अगर हम उसको लिख देंगे ना तो वो लॉ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. तो स्केड्यूल्स आर बेसिकली एडिटिव्स जो मेन लॉ में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कॉलम में सेक्शन नंबर मेंशन्ड है BNS का. आई रिपीट, BNSS में फर्स्ट स्केड्यूल में फर्स्ट कॉलम में सेक्शन मेंशन होता है BNS का. फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन नंबर 64 क्लॉज 1 दैट अमाउंट्स टू रेप. ऑफेंस है रेप. नाउ द थर्ड कॉलम एक्चुअली टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट, कि पनिशमेंट क्या होगी. रिगरस इम्प्रिजनमेंट of not less than 10 years but which may also extend to imprisonment for life and fine. Now the fourth column talks about cognizability of an offence, whether it is an cognizable offence or a non-cognizable offence. The fifth column about bailable or non-bailable offence, and then the sixth column talks by what court it would be exclusively triable. Now in this case, rape is a cognizable offence, non-bailable offence, and an offence that is exclusively triable by court of session. So basically अगर ये रेप का केस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास आता है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कमिटल के थ्रू वो केस कोर्ट ऑफ सेशन को सेंड करना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 213 ऑफ BNSS. अगर हम कॉग्निजेबल की बात करें, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली मीन्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा अपराध है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर का अपराध है और उसमें पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है. एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली सेक्शन 21G में बताया गया है एज डिफाइंड अंडर BNSS, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 21O के अंदर. सो या और सी तो है सेक्शन नंबर 39 जो बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी नॉन कॉग्निजेबल अपराध किया है और आप डिमांड के ऊपर रिफ्यूज़ कर देते हो अपना रेजिडेंस बताना या फिर अपना नेम बताना और या फिर गलत कुछ बताते हो, तो फिर पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है.
और जब आपका नाम पता चल जाएगा, आपका रेजिडेंस पता चल जाएगा, तो पुलिस आपको बॉन्ड पे या फिर बेल बॉन्ड पे छोड़ सकती है। एंड फर्दर इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप रेजिडेंट नहीं हो इंडिया के, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फॉरेनर हो, तो बेल बॉन्ड में देयर वुड बी श्योरिटीज़, आपको श्योरिटीज़ लाने पड़ेंगे इन अ बेल बॉन्ड, बेसिकली जो इंडिया के रेजिडेंट होनी चाहिए। आई वुड एक्सप्लेन अबाउट बेल बॉन्ड एज वेल, व्हाट इज़ इट। एंड या अगर ट्रू नेम और रेजिडेंस ऐसा इंसान का पता नहीं चलता है 24 आवर्स के अंडर, तो फिर मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस को आपको लेकर जाना पड़ेगा, सो दैट आपका नाम, आपका रेजिडेंस पता चल सके। एंड जो हमने सेकंड पॉइंट की बात करी कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। सो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल में बेसिक डिफरेंस यही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, एंड ये सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस होते हैं जिसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती अरेस्ट करने के लिए। About if we are talking about the part where the police can investigate, it is written under section 175 BNSS, that was 156 CRPC। और नॉन कॉग्निजेबल में जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती वारंट के बिना, दैट इज़ रिटन अंडर सेक्शन 174 क्लॉज 2 BNSS और 155 क्लॉज 2 CRPC। So this is basically a quick difference between cognizable and non-cognizable cases, and ये फोर्थ कॉलम में mentioned है of the first schedule। So basically फोर्थ कॉलम बात कर रहा था cognizable and non-cognizable cases की। अब फिफ्थ कॉलम बात कर रहा है कि क्या कोई ऑफेंस बेलेबल है या फिर वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो सबसे पहले बेल क्या होता है? बेल बेसिकली एक ऐसा राइट है एक इंसान का जो कि अरेस्ट हुआ है। ओके, तो बेसिकली फिफ्थ कॉलम समझने के लिए ना आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। एग्जैक्टली 5 वर्ड्स हैं: बेल, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड, रिटन ओवर हियर। ओके, तो बेल बेसिकली क्या है? सेक्शन 21B में डिफाइंड है ऑफ द BNSS। वी आर टॉकिंग अबाउट BNSS। अगर मैं BNSS नहीं बोलूँ, मतलब अगर मैं नॉर्मल सेक्शन बोल रही हूँ, मतलब BNSS की बात हो रही है, अदरवाइज मैं कुछ कह रही हूँ तो मैं वो लॉ मेंशन कर दूँगी। तो सेक्शन 21B में मेंशन है बेल। बेल बेसिकली एक रिलीज़ है। ओके, सो आई हैव broken the definition into 5 parts. Basically, bail is a release of a person accused or suspected of commission of an offence from lawful custody, that could either be police custody or judicial custody, upon executing certain conditions, upon following certain conditions mentioned under a bond or a bail bond. दैट इज़ वॉट बेल इज़। बेसिकली एक इंसान का बेल अगर किसी को मिल रही है तो क्या है? वो एक रिलीज़ है ना। कस्टडी से उसको रिलीज़ मिल रहा है, या तो वो पुलिस कस्टडी में है या फिर वो जुडिशियल कस्टडी में है, और वो पर्सन एक अक्यूज्ड है, उसके ऊपर फॉर्मल एलिगेशन है इन द फॉर्म ऑफ FIR और कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट, FIR टू द पुलिस और कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट, एंड या फिर वो एक पर्सन सस्पेक्टेड है, उसके ऊपर सस्पिशन है ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, रीजनेबल सस्पिशन है उसके ऊपर, या फिर किसी भी तरीके से उसके ऊपर सस्पिशन है बाय द विटनेसेस, एलिगेशंस और एनीथिंग, या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसका रिलीज़ इज़ एक्चुअली बेल। और उसको ऐसे रिलीज़ नहीं कर दिया जाता, उसको कुछ कंडीशंस माननी पड़ती हैं। एक बॉन्ड पे उसको साइन करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट उसको साइन करना पड़ता है, बेल बॉन्ड दैट इज़। उसके अंदर कुछ कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, वो इंसान जब बुलाया जाएगा तब कोर्ट में आएगा, जब उसे कहीं भागेगा नहीं, विटनेस टैम्पर नहीं करेगा, एविडेंसेस टैम्पर नहीं करेगा, विटनेसेस को थ्रेटन नहीं करेगा, ठीक है। एंड एक सर्टेन सिक्योरिटी, एक अमाउंट भी यहाँ पे करी जाती है टू द गवर्नमेंट और टू द कोर्ट। तो बेसिकली एक केस है जिसका नाम है सत्येंद्र कुमार। ओके, आई विल टेल यू द केस नेम। सत्येंद्र वर्सेस NCT दिल्ली का केस है, जिसमें ये प्रिंसिपल निकाला गया था, बेल नॉट जेल। बेसिकली बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। इसी को देखते हुए हम इन 5 वर्ड्स को एक्सप्लेन को समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ बेल, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल बॉन्ड एंड अ बॉन्ड। तो बेल समझ आ गया। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल ऑफ 5th कॉलम में जो कि मेंशन है, एंड इसकी डेफिनेशन सेक्शन 21C में मेंशन्ड है।
सेक्शन 21C में मेंशन है कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द 5th कॉलम में बेलेबल बताया गया है, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो कि फर्स्ट शेड्यूल 5th कॉलम में नॉन बेलेबल बताया गया है। अब इससे हमें मीनिंग तो पता चला नहीं कि बेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, तो वो मैं बताती हूँ। बेलेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें आपकी जो बेल है वो आपका एक राइट है, लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल डिस्क्रिशन है कोर्ट की। मतलब बेलेबल ऑफेंस में वो आपका अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे बोलते हैं कोई माई का लाल रोक नहीं सकता बेल लेने से एक बेलेबल ऑफेंस में। लेकिन अगर आपने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, एब्सकॉन्डिंग, ये इसमें आपको बेल मिलना मुश्किल होता है। बेल मिल सकती है, ऐसा नहीं है बेल नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें बेल कोर्ट देता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पर मिलती है। लेकिन बेलेबल ऑफेंस में बेल आपको पुलिस वाला भी दे सकता है, मैजिस्ट्रेट भी दे सकता है और कोर्ट भी दे सकता है। बात करें बेल बॉन्ड और बॉन्ड की, तो वो मैंने अभी आपको इनडायरेक्टली बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द स्टेट, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस मेंशन होती हैं। बेसिकली एक लाइबिलिटी डॉक्यूमेंट है, एक अंडरटेकिंग है रिलीज़ के लिए। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बेल बॉन्ड में श्योरिटी चाहिए होता है और बॉन्ड में श्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जहाँ पे राइट्स और रेमेडीज़, बेल एंड अरेस्ट की बात हो रही है, ये ऊबी जस्ट ईबी रेमेडियम पे बेस्ड है, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर एक ऑफेंस हुआ है, अगर आपका राइट वहाँ पे वॉयलेट हुआ है, तो वहाँ पे आपको एक रेमेडी भी दी जाएगी। मतलब वहाँ पे अरेस्ट ऑफ दैट अक्यूज्ड होगा, उसको अगर बेल ग्रांट करी जाएगी अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया है, बेल ग्रांट नहीं करी जाएगी अगर उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, या फिर डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कोर्ट के। एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा BNSS के अंदर, कोर्ट के अंदर। प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस होंगे, डिफेंस एविडेंसेस होंगे, विटनेसेस होंगे, और एंड देन फाइनली कोर्ट अपनी जजमेंट डिक्लेयर करेगा। एंड देन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ अपील होंगे, रिव्यू, रिविजन and reference. Review is not there in the criminal law. There are 3 remedies available to the aggrieved person that are appeal, that are basically appeal, revision and reference. अब बेसिकली लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ा था, सेक्शन 478 एंड सेक्शन नंबर 480। अगर आपने एक बेलेबल ऑफेंस किया है तो सबसे पहले तो सेक्शन 47 क्लॉज 2 BNSS ये बोलता है कि बेल मिलना आपका अधिकार है। अगर आपको किसी इंसान ने, आपको बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, या फिर एक प्राइवेट पर्सन ने भी अरेस्ट किया हो, या फिर एक जुडिशियल ऑफिसर ने अरेस्ट करवाया हो आपको, तो 47 क्लॉज 2 के अंदर अगर आपका बेसिकली पुलिस वाले को आपका ये अधिकार है कि पुलिस वाला आपको ये बताएगा कि आपने जो अपराध किया है उसके लिए आपको बेल मिल सकती है, एंड आपको सर्टेनली जो भी श्योरिटीज़ वगैरह चाहिए हों या सिक्योरिटी पे करनी हो वो आप कर सकते हो। 47 क्लॉज 2 सेज दैट बेल इज़ योर राइट अंडर बेलेबल ऑफेंस, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी मिल सकती है बेल, बट दैट इज़ बेसिकली अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब सेक्शन 478 और सेक्शन 480 की बात करते हैं बेल से रिलेटेड। पूरे BNSS में ना बेल एंड बेल बॉन्ड से रिलेटेड जो चैप्टर डील कर रहा है दैट इज़ चैप्टर नंबर 35, जो कि सेक्शन नंबर 478 से 496 तक गिवन है BNSS में। सेक्शन 478 वो बताता है कि अगर आपने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसमें आपको बेल कैसे मिलेगी, और सेक्शन 480 बताता है कि अगर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो आपको बेल कैसे मिलेगी। सेक्शन 478 ये कहता है कि अगर एक पर्सन अक्यूज्ड है एक बेलेबल ऑफेंस का तो उसको बेल मिलना उसका अधिकार है। सेक्शन 478 में 2 कैटेगरी ऑफ पीपल को बेल नहीं मिल सकती, एक तो वो इंसान जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, और एक वो इंसान जिसने कॉग्निजेबल अपराध किया हो, मतलब ऐसा अपराध जिसमें विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है, अगर किसी इंसान ने बेलेबल अपराध किया हो और उसमें पुलिस ने उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया हो तो उसमें उसको बेल मिल सकती है सेक्शन नंबर 478 BNSS में। एंड सेक्शन 480 में बेल कब मिलेगी, जब आपने कोई नॉन बेलेबल अपराध किया हो और आपको कॉग्निजेबल अपराध के तहत अरेस्ट करा हो विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अब 478 में ग्रांट कौन करेगा बेल? मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, पुलिस भी कर सकते हैं, कोर्ट भी कर सकता है। क्या इसमें रिफ्यूज़ल वैलिड है? बेलेबल ऑफेंस में वैलिड नहीं है अगर कंडीशंस फुलफिल की जाए। अब बेल मिलने के लिए क्या करना होगा? बेल मिलने के लिए एक बेल बॉन्ड साइन करना होगा। और अगर ये भी मेंशन है 478 के प्रोवाइजो में, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक जस्टिस प्रिंसिपल्स टेकन फ्रॉम USSR अंडर सेक्शन आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 478 का प्रोवाइज़ो ये बताता है कि अगर एक इंसान जो कि डिटेन कर लिया गया है
वो 24 आवर्स के अंडर बेल बॉन्ड नहीं अरेंज कर पा रहा, मतलब वो बेल बॉन्ड में श्योरिटी चाहिए होते हैं, श्योरिटी को अरेंज नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली उसको इंडिजेंट मान लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं है, और उसको बेल बॉन्ड साइन ना करने के बजाय एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड में श्योरिटी नहीं होते, उसमें आपको पे नहीं करना पड़ता कुछ भी, श्योरिटी नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होता, उसमें बस आपको एक सर्टेन कंडीशंस को मानना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत। सो दैट इज़ अ बॉन्ड। अब अगर आपने 478 के तहत उन कंडीशंस का ब्रीच कर दिया, मतलब आपने वो कंडीशंस नहीं मानी, तो क्या होगा? तो फिर मान लो आपको कंडीशन थी कि आपको इस टाइम पर कोर्ट में आना है, आपको जब बुलाया जाए, आपको जब सम्मन दिया जाए, आपको यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगानी है, आपको एब्सकॉन्ड नहीं करना है, आपको देश छोड़ के नहीं जाना है, आपको विटनेसेस को टैम्पर नहीं करना है, आपको फॉर एग्जांपल एविडेंसेस के साथ कुछ भी टैम्परिंग नहीं करनी है, विटनेसेस को थ्रेटन नहीं करना है, लेकिन आप ऐसा करते हो, आप ऐसा कुछ भी करते हो जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है और पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो फिर ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपको बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी आपको वो बेल देने से मना कर सकती है। कंडीशन से पहले क्या था, कोर्ट आपको मना नहीं कर सकती थी बेल के लिए, अंडर अ बेलेबल ऑफेंस, आई रिपीट, ओनली अंडर अ बेलेबल ऑफेंस। ये आपका अधिकार है बेल लेना अंडर अ बेलेबल ऑफेंस। लेकिन अगर आप उन कंडीशंस को नहीं फॉलो करते हो जो आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप जिसके लिए ऑब्लाइज्ड हो करने के लिए, तो कोर्ट आपको डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंडर आपको रिफ्यूज़ कर सकती है कि आपको बेल नहीं दी जाएगी। मतलब वो कुछ भी कर सकती है। कोर्ट बोल सकता है आपको कि 491 के अंदर पेनल्टी पे करो, आपको बेल दे भी सकती है, आपको बेल रिफ्यूज़ भी कर सकती है। इट इज़ टोटली द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। सो या दैट वाज ऑल। अभी तक मैंने जो पढ़ा है 480 की वर्डिंग्स अभी मुझे पढ़नी है एग्जैक्टली। व्हेन आई स्टडी दैट आई लेट यू नो कि 480 में बेल कैसे मिलती है अंडर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। एंड या एक चैप्टर नंबर 9 है दैट इज़ डीलिंग विद बॉन्ड्स, एंड एक चैप्टर नंबर 35 है दैट इज़ डीलिंग विद बेल एंड बॉन्ड्स। दोनों में डिफरेंस है। चैप्टर नंबर 9 जो है सेक्शन नंबर 125 से 129 तक, दैट इज़ डीलिंग विद सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। एंड सेक्शन नंबर 478 से जो 496 तक है दैट इज़ डीलिंग विद बेल एंड बेल बॉन्ड्स। अगर हम 125 से 129 तक बात करें तो दैट इज़ बेसिकली फॉर सिक्योरिटी। यहाँ पर आपने अपराध किया नहीं है। 125 बोल रहा है सिक्योरिटी ऑन कन्विक्शन, मतलब आपने अपराध किया, आपको कन्विक्शन भी हो गई, आप सज़ा काट रहे हो, तब आप एक बॉन्ड साइन कर रहे हो कि आप ऐसा काम दोबारा नहीं करोगे। दिस इज़ बेसिकली फॉर गुड बिहेवियर एंड पीस। 126 से 129 तक आप एक अक्यूज्ड भी नहीं हो, आपके ऊपर कोई फॉर्मल एलिगेशन नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा है सिचुएशंस को देखते हुए कि शायद आप थोड़े से मिस्चीवस हो या फिर आप शायद थोड़े से शरारती हो। क्या मतलब मैं बोलूँ, थोड़े से मतलब आप क्रिमिनल माइंडेड हो, तो आपसे एक बॉन्ड साइन करा लिया जाता है फॉर सिक्योरिटी एंड गुड बिहेवियर कि आप ऐसा कुछ काम नहीं करोगे जिससे सोसाइटी में कोई डर का माहौल पैदा हो या कुछ भी, मतलब ऐसा आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगे। 478 और 496 के जो सेक्शंस हैं चैप्टर नंबर 35 में, दैट इज़ एक्चुअली डीलिंग विद बेल एंड बेल बॉन्ड्स, कि आप एक अक्यूज्ड हो या फिर आप एक सस्पेक्टेड हो, आपने एक कमीशन ऑफ ऑफेंस किया है या फिर आप सस्पेक्टेड हो उस कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए, कोई भी बेलेबल अपराध हो या नॉन बेलेबल अपराध हो, और उसमें आपको बेल बॉन्ड साइन करना है या फिर बॉन्ड साइन करना है। दैट इज़ व्हाट इज़ अंडर चैप्टर नंबर 35। बट चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली बॉन्ड है, यहाँ पे भी वर्ड बॉन्ड यूज़ हुआ है, बट इट इज़ फॉर सिक्योरिटी एंड गुड बिहेवियर। सो दिस वॉज ऑल आई हैव स्टडीड टिल नाउ। अभी मेरे को सेक्शन नंबर 480 पढ़ना है। मैंने मतलब ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करा, मेरा भी रिवाइज हो गया, मैंने आपको ही बता दिया। एंड मेरा गला थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, दैट आई हैव स्पोकन सो मच बिकॉज लाइक आई एम नॉट इन दैट जोन कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मतलब मैं बोलती हूँ, बट आई स्पीक limited words and impactful words. I don't speak randomly. I don't blabber basically. I speak when it is actually needed. So yeah, let's just start the work. Let's continue studying section number 480 and the subsequent topics of PNSS. And yeah, थोड़ा सा glimpse आपको भी दे दूँगी जो मैंने पढ़ा to make my vlog interesting. And just look at him.
मैं जहाँ पे भी बैठूंगी पढ़ने के लिए ये यहाँ पे आके सो जाएगा। ये इतना प्यारा लगता है ना, मन कहते इसको ऐसे 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 कल के प्यार करती रहूँ पूरा दिन में। पर क्या करूँ, पढ़ना भी तो है ना मेरे को। Easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No.